So let's start the story from where we have left in the previous video. We'll start from page number 34th, paragraph number 2nd. Let's start reading. I will read one paragraph and then I will explain you the meaning. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. Peddler जो सेल करते हैं चीज़ें, सेलर, तो उनको हम पेडलर बोलते हैं, PEDDLER. He did not try to get in. However, he only went up to the window, smashed a pane. Smashed मतलब badly broken, किसी चीज़ को बुरी तरह तोड़ देना. Window pane, विंडो का शीशा होता है. Stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. Kroner करेंसी है. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. So, what happened now? Then हमने पहले पढ़ा था कि उनको जो रैट रैप सेलर था वो रात में ओल्ड मैन के घर आया था. ओल्ड मैन ने उसको अपनी बातें बताई कि कितना उसके पास मनी है, उसको पॉरेज खिलाई और अपना टोबैको भी शेयर किया. अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि ओल्ड मैन को अपने काम पर जाना था, इसलिए ओल्ड मैन और रैट ट्रैप सेलर दोनों घर से साथ में निकले. नाउ क्योंकि उसको पता था कि पैसे कहाँ रखे हुए हैं, कितने रखे हुए हैं, सो ही had an idea about that. So जैसे ही वो लोग निकले, half an hour भी नहीं हुआ था, the rat trap seller returned to the cottage. वो वापस आया and he broke down the window pane where the pouch hung. उसने सीधे विंडो पेन को तोड़ा जहाँ पे पाउच जिसमें पैसे थे वो वहाँ पे लटका हुआ था. He took away the money kept in his pocket, put the pouch back at his place and walked off. तो उसने उसमें से मनी निकाला, पाउच को वापस उसी जगह रखा और वहाँ से चला गया. Let's read further. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared to not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused with no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gone into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the woods, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunk and branches, its thickest and fallen logs. Thickets means a dense group of bushes. Okay? Closed in upon him like an impenetrable prison. Impenetrable मतलब impassable, जहाँ से आप निकल नहीं सकते हो, आप बस अंदर चले गए हो. From which he could never escape. Now what happened now? ये पूरा पैराग्राफ है, वो बता रहा है कि कैसे जब रैट ट्रैप सेलर ने चोरी की वो कहाँ गया और उसने क्या किया. Now रैट ट्रैप सेलर was quite happy as he had money in his pocket, क्योंकि उसके पास पैसे थे, वो गरीब था, उसने चोरी करी और उसके पास अब पैसे थे, तो वो काफ़ी खुश था. He then thought of walking through the woods, as it was unsafe to walk on the highway because he feared being caught. Now उसको डर था कि वो कहीं पर उसको पकड़ा ना जा सके, तो वो उसने हाईवे से जाने से बेहतर समझा कि वो फॉरेस्ट के अंदर से जाएगा. सो इनिशियली इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट. स्टार्टिंग में तो डिफ़िकल्ट नहीं था फॉरेस्ट में वॉक करना, बट लेटर ऑन इट गॉट कन्फ्यूजिंग फॉर हिम एज ही गॉट हिज वे. पर धीरे धीरे उसके लिए कंफ्यूजिंग होता गया जैसे वो अंदर जाता गया फॉरेस्ट के अंदर. ही ट्राइड हार्ड टू
walk in the right direction, but in vain as he found himself at the same place again and again. वो ट्राई करता रहा कि वो एक राइट डायरेक्शन में जाके इस फॉरेस्ट से निकल पाए, बट वो अगेन एंड अगेन एक ही जगह पे वापस आ रहा था. एट दिस पॉइंट of time he started thinking that now he himself caught in the rat trap of the world just like the other people. Now स्टोरी में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि रैट ट्रैप सेलर अपना आइडिया शेयर करता है कि वो क्या समझता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है, और जो यहाँ पे कंफर्ट्स हैं, लग्जरी है, मनी है, शेल्टर है, क्लोथ्स है, ये सब यहाँ की बेट हैं. इसी बेट में सारे पीपल फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं इस होल्ड वर्ल्डली रैट ट्रैप में वो कहीं ना कहीं फंसे रह जाते हैं. तो नाउ अब वो ये सोच रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि शायद वो भी उसी वर्ल्ड के ट्रैप में फंस चुका है इस टाइम पे, जैसे और लोग फंसते हैं. ही वॉज फूल्ड बाय द बेट ऑफ मनी. तो बेट एक शिकारी को पकड़ने के लिए एक चीज़ लगाई गई है, उसमें वो कहीं फंस गया है, which he had stolen from the old man's house. The forest seemed like a prison full of trunks and branches. फॉरेस्ट ऐसा हो गया था जिस पॉइंट पे वो वहाँ था कि ना वो बाहर निकल पा रहा था उससे और ना वो राइट डायरेक्शन ढूंढ पा रहा था. तो उसके लिए एक जेल जैसा हो गया था जो ट्रंक्स और ब्रांचेस से भरा हुआ है. इट इज़ लाइक एन इम्पैसिबल प्रिजन. वो एक ऐसा प्रिजन बन गया था कि वो जिससे एस्केप नहीं कर सकता. ओके, let's read further. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Gloom मतलब darkness होता है और despair मतलब होता है hopelessness, जब आपके पास कोई hope नहीं होती है. Finally he saw no way out and he sank down on the ground. फाइनली उसको कोई वे नहीं मिला एंड ही सैक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे ही बैठ गया. ट्राइड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. Thumping is the sound of heavy object beating. जब किसी बहुत ही heavy object को मार रहे होते हैं तो उससे एक आवाज़ निकलती है, थम्पिंग साउंड. लेट्स रीड फर्दर. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength. Summoned means gathered. Got up and staggered in the direction of the sound. Staggered means move with difficulty. Now अब वो पूरा दिन बीत गया. He was also hungry. तो उसके और जो टाइम था वो था, इट वॉज अ मंथ ऑफ दिसंबर. दिसंबर वैसे ही डार्क होता है बिकॉज बहुत ठंड होती है. इट गॉट टू डार्क. एज इट गॉट टू डार्क हिज होप ऑफ एस्केपिंग द फॉरेस्ट रिड्यूस. जैसे जैसे डार्क होता जा रहा था वैसे उसकी जो होप थी कि वो इस फॉरेस्ट से निकल जाएगा वो रिड्यूस हो रही थी. द डेंजर टू हिज लाइफ इंक्रीज्ड. और जो डेंजर था उसकी लाइफ के लिए वो इंक्रीज हो रहा था. एंड सो डिड हिज फीलिंग ऑफ बीइंग होपलेस. नाउ वो पहले होपलेस था, अब वो और ज़्यादा होपलेस हो गया था. देयर वॉज नो वे लेफ्ट फॉर हिम बिकॉज सो ही सैट ऑन द ग्राउंड एंड वॉज सो टायर्ड एंड टेरिफाइड दैट ही थॉट दैट दिस वॉज हिज लास्ट मोमेंट. नाउ वो इतना ज़्यादा डर चुका था, वो इतना टायर्ड था कि उसको लग रहा था कि ये उसका लास्ट मोमेंट है. नाउ उसकी डेथ अप्रोच कर रही है उसे. बट सून, जिससे पहले वो डाई कर पाए, मर सके, एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे उसका ग्राउंड पर हेड लगा वैसे उसे एक हैवी ऑब्जेक्ट की बीटिंग की साउंड सुनाई दी. ही हर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलर साउंड. इट वॉज अ हार्ड साउंड दैट वॉज कमिंग एट द रेगुलर इंटरवल्स. वो एक हार्ड साउंड था जो रेगुलर इंटरवल्स के बीच में आ रहा था. He soon realized that these sounds were the sounds of hammer strokes from an iron mill. हमने स्टार्टिंग में भी आयरन मिल की बात करी थी. तो ये किसकी आवाज़ थी? आयरन मिल जो तहखाना होता है, आयरन मेटल का तहखाना के अंदर कोई हैमर
पीट रहा था, उसकी आवाज़ थी ये. He thought that he could find some people nearby. With his thought, he gathered some strength and started walking with great difficulty. उसको लगा कि शायद वो यहाँ से निकल सकता है, एक होप उसके अंदर जगी वो हैमर स्ट्रोक्स को सुन के. एंड उसने अपनी स्पिरिट्स गैदर करी, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करी, और उसने सोचा कि इस साउंड के डायरेक्शन में ही अगर वो चले तो वो शायद बाहर निकल सकता है. सो ही स्टार्टेड वॉकिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी. ही वॉज सो टायर्ड कि उसको डिफिकल्टी हो रही थी चलने में भी, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज द Ramso ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. फॉर्ज का मतलब होता है शॉप जहाँ पे मेटल हीट करा जाता है, जिसको पिघलाया जाता है. ठीक है. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनाल. बार्जेस का मतलब होता है एक लॉन्ग फ्लैटेंड बॉटम्ड बोट फॉर कैरिंग फ्रीट्स ऑन कैनाल्स एंड रिवर. जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो जो बोट्स होती हैं जिसके अंदर से बहुत सारे चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती हैं थ्रू कैनाल्स और रिवर्स, उस बोट को हम बोलते हैं बार्ज. स्काउ का मतलब होता है अ फ्लैट बॉटम बोट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो टू एंड फ्रो फ्रॉम शिप इन हार्बर. तो वही चीज़ हो गई, सिमिलर चीज़ें ही हैं दोनों, बार्ज और स्काउ. Which led to a large inland take, and in the winter time the road near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. Sifted का मतलब होता है descended lightly or sparsely as if sprinkled from a sieve. Smelter का मतलब होता है एक मशीन जो मेटल पिघलाने में हेल्प करती है, शेप देने में हेल्प करती है. ठीक है. एंड रोलिंग मिल होती है, इट इज़ अ मशीन टू रोल मेटल इनटू शीट्स. ठीक है. मेटल को शीट्स में बदलने के लिए एक मशीन यूज़ होती है जिसका नाम होता है रोलिंग मिल. नाउ व्हाट दिस मीन्स, तो पास में ही एक लार्ज प्लांट था जिस आयरन वर्क्स मिल का नाम था रैमसो आयरन वर्क्स, which had shut down few years ago, जो बंद हो चुकी थी कुछ साल पहले. It had smelter, rolling mill and a forge. तो वहाँ पे स्मेल्टिंग करने के लिए भी, मतलब मेटल पिघलाने के लिए भी सामान था. रोलिंग मिल भी थी जहाँ पे मशीन्स के थ्रू मेटल शीट्स में बनते हैं, और फॉर्ज भी था, मतलब शॉप थी जहाँ पे मेटल पिघलाया जाता है. इन समर्स लॉन्ग फ्लैट बॉटम्ड boats carrying the material would came down the canal, which led to a large inland lake for supplying material to the mill. And in winters the road turned black because of the coal dust that came along due to the transportation of the charcoal crates. So summers में क्या यूज़ होते थे, वो जो कैनाल्स हैं उनके थ्रू मटेरियल सप्लाई होता था मिल्स को, और विंटर्स में वही जो रोड्स होती थी वो पूरी ब्लैक हो जाती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोल डस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होता था वहाँ पे चारकोल का. चारकोल काले रंग का होता है और सब जगह कोल डस्ट आ जाती थी, इसलिए पूरी रोड ब्लैक हो जाती थी. लेट्स रीड फर्दर. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the crude iron, which had been put in the fire, to be ready to put on the anvil. Anvil heavy iron block होता है with a flat top and concave sides. तो एक कंटेनर टाइप का होता है जिसके अंदर हम आयरन रखते हैं जिससे कि वो मेल्ट होए. तो वो कंटेनर नीचे से तो गोल होता है, ऊपर से फ्लैट होता है. ठीक है. लेट्स रीड फर्दर. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few minutes dripping with precipitation
though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. Precipitation is sweat, pasina. ठीक है, so what this means, this paragraph means that on one long dark evening, जो क्रिसमस के टाइम थी, दिसंबर का महीना चल रहा है, क्रिसमस आने वाला है, जो मास्टर स्मिथ, जिन मास्टर का नाम स्मिथ है और उनके हेल्पर्स हैं, वो डार्क फॉर्ज जो दुकान है जहाँ पे मेटल मेल्ट होता है वहाँ पे बैठे हुए हैं, विच वॉज बिल्ट नियर द फर्नेंस, जो फर्नेंस के पास में बिल्ट हुई है, बनी हुई है. ही वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़. तो उनका जो ड्रेस है जो वो पहने हैं वो लॉन्ग शर्ट पहने हैं और वुडन शूज़ पहने हुए हैं. बोथ ऑफ देम वर वेटिंग फॉर अ पिग आयरन विच वॉज put inside the furnace fire to be ready to put into the anvil. तो now कुछ रखा जाता होगा जिसमें से आग निकलती होगी, उसके ऊपर एक फर्नेस रखा जाता होगा, एक कंटेनर रखा जाता होगा, एनविल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आयरन ब्लॉक्स रखे जाते हैं और उसको बार बार ऐसे उसको स्टर करना पड़ता है जिससे कि वो हीट से मेटल लिक्विड बन जाए. ठीक है. They took turns to stir the liquid which was very hot. Now जो उससे आग निकलती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उनको अब टर्न्स लेनी पड़ रही थी कि एक बार पहले कोई उसको स्टर करके आए, शेक करके आए, फिर दोबारा कोई जाए. As they would bear the heat for a few minutes, as सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए वो उस तपती हुई हीट को बेयर कर सकते थे. Each of them would return sweating profusely. So जब कोई स्टर करके वापस आता था तो बिल्कुल उस स्वेट से बिल्कुल वो नहाया हुआ होता था, इतना ज़्यादा स्वेट आ जाता था. ठीक है. Now that's it for the video. I will continue the chapter in the next video. Thank you.